Dear students, this is English reader. Chapter name is The Dragon Rock. So, in this chapter, we are going to read about a giant rock. Dragon here means giant. Giant means बहुत बड़ी rock, चट्टान, बहुत बड़ा एक पत्थर. So, in the chapter, we are going to read about the belief of a village people, those who believe that the dragon rock, which was village, will help them one day. Now, did it really help them or not? We'll read in the chapter. So generally we used to start with stories with once upon a time. Once upon a time, and imagine if you can, a steep valley cluttered with giant spiky green pine trees and thick green grass. So this the story they have started with once upon a time, and they ask us to imagine the beautiful picture which they are describing in the chapter. Like the view is of a steep valley, which is having big and sharp pointed pine trees. Green grass is there on that steep valley. Valley here means घाटी. घाटी के ऊपर बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारी green grass है. Wild flowers spread their sweet heady perfume along the gentle breeze, and bees hum musically to themselves as they cheerily collect flower pollen. जो जंगली फ्लावर्स हैं वो सब जगह में फैले हुए हैं और उनकी जो खुशबू है वो हल्की हल्की हवा के झोंके के साथ सब जगह में फैली है. जो बीज़ हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, वो अपनी आवाज़ निकालते हुए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रही हैं और वहाँ से पॉलन, जो उनका जूस है फ्लावर्स का, दे वर कलेक्टिंग देम. Cheerly here means happily. So people are very happy here and they work hard. यहाँ के लोग बहुत खुश हैं और बहुत मेहनत करते हैं. Keeping their houses spick and span and their children faces clean. अपने घरों को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन रखते हैं, अपने बच्चों के फेसेस क्लीन रखते हैं. सो दिस पर्टिकुलर समर हैड बीन वेरी हॉट एंड ड्राई. ये जो समर है ये थोड़ी ज़्यादा गर्म है, सूखी है. मेकिंग द लीन फार्म डॉग्स स्लीपी एंड स्टिल. जिसके कारण जो हमारे डॉग्स हैं जो फार्म में रह रहे हैं अपने फार्मर्स के साथ में, सो दे आर ऑल्सो लीनिंग, लेटे हुए हैं, झुके हुए हैं, फीलिंग स्लीपी ऑल्सो. Farmers whistled lazily to themselves and would stand and stare into the distance. जो लोग हैं वो भी दूर खड़े होकर सोच रहे हैं, विस्लिंग करते हुए सोच रहे हैं, वॉट थिंग्स, ट्राइंग टू रिमेंबर वॉट इट वॉज दे वर सपोज टू बी डूइंग, कि वो क्या कर रहे थे या कल उन्होंने अपना काम कहाँ पर ख़त्म किया था उसके बारे में वो सोच रहे हैं. बाय 2 o'clock in the afternoon, अब now it is the 2 o'clock time in the afternoon itself, the village would be in a haze of slumber. So whole village is now feeling sleepy because of the hotness, because it is very hot outside. With grandmas nodding off over their knitting. जो दादी माँ सुबह से लगी हुई हैं, कुछ कुछ काम कर रही हैं या बुनने का काम कर रही हैं, बिकॉज आप देखो हिली वैलीज़ का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. सो इन दैट द शीप्स वूल इज़ ऑल्सो अवेलेबल in those parts. So there the main occupation of the women especially are the knitting one only. So but the grandmas also have now put off their work. अब उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया हुआ है. एंड फार्मर्स स्नूजिंग इन द हे स्टेक्स. और जो फार्मर्स हैं वो भी अपने, जो उन्होंने छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बना रखी हैं फार्म्स में, उनके अंदर वो हल्की नींद लेने की कोशिश कर रहे हैं. इट वॉज़ वेरी वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है. No matter how hot the day, however, the children would always play in the gentle rolling meadows. चाहे कहते कितनी भी गर्मी हो, लेकिन जो बच्चे होते हैं like you people also, उन्हें गर्मी का कोई एहसास नहीं, and they just play. And now in the valley itself they are playing on the rolling meadows. Meadows here means sloping fields of grass, because the description is of the valley itself. So valleys we found in the mountainous part,
तो माउंटेन्स थोड़ा स्लोप्स में होते हैं, सो ग्रास ही ग्रास है सब जगह, वो वहाँ पे खेलने में मज़े कर रहे हैं. With wide brimmed hats, they chittered and chattered like sparrows as they frolicked in their favorite spot. Wide brimmed hats, उन्होंने बड़े बड़े hats पहने हुए हैं. अब they chittered, और वो उसमें बातें करते जा रहे हैं. लाइक स्पैरोज, जैसे चिड़िया है, उनको कोई मतलब नहीं है कि गर्मी है या क्या है, तो वो बच्चे भी मर्जी अपने मन से खुशी से वहाँ बातें करते जा रहे हैं, घास के ऊपर कूद रहे हैं, स्लोप कर रहे हैं. सो एज दे फ्रोलिक्ड इन देयर फेवरेट स्पॉट, और वो उनकी फेवरेट जगह में पहुँच चुके हैं, इसलिए उनको कोई डर नहीं है और वो मज़ा कर रहे हैं. नाउ देयर फेवरेट स्पॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस स्टोरी. सो हेयर दे आर highlighting that the place where these children play, that is the favorite sport, उनकी फेवरेट स्पोर्ट है, बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टोरी ऑल्सो. नाउ वाई? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर स्पॉट इज़ अ लार्ज लॉन्ग स्केली रॉक दैट लुक्स अमेजिंगली सिमिलर टू अ स्लीपिंग ड्रैगन. क्योंकि उनकी ये जो फेवरेट जगह है खेलने की, वो बहुत बड़ी सी स्केली रॉकी की तरह है, रॉक है, एक बड़ी सी चट्टान है, जो कि ऐसा दूर से ऐसा देखने में लगता है कि कोई एक ड्रैगन जो है, एक जाइंट सा कोई जो रॉक है, वो सो रही है. द चिल्ड्रन न्यू इट वॉज अ ड्रैगन, द ग्रोन अप्स न्यू इट वॉज अ ड्रैगन, द डॉग्स एंड कैट्स एंड बर्ड्स न्यू इट वॉज अ ड्रैगन, बट नो बडी वॉज स्केयर्ड बिकॉज इट नेवर एवर मूव्ड. बच्चों को पता है ये ड्रैगन है, बड़ों को पता है ये ड्रैगन है, एक जाइंट सी रॉक है, डॉग्स कैट्स को पता है, बर्ड्स को भी पता है, बट कोई भी उससे डरता नहीं है, क्योंकि वो कभी भी जो ड्रैगन है वो हिला नहीं है. सो द बॉयज़ एंड गर्ल्स वुड क्लैम्बर ऑल ओवर इट. बॉयज़ और गर्ल्स उसके ऊपर चढ़ते रहते हैं. पोकिंग स्टिक्स एज इट एंड at it and hanging wet boots on its ears, but it didn't mind in the least. कहते उसके ऊपर स्टिक्स भी गाड़ते रहते हैं खेलने के लिए. उनके ऊपर जो गीले उनके जो बूट्स हैं, उनको उसके कान के ऊपर भी रख देते हैं इस ड्रैगन लाइक रेप्टाइल के ऊपर, पर वो कुछ भी किसी भी चीज़ का बुरा नहीं मानता है. द मैन वुड समटाइम्स चॉप फायरवुड ऑन इट्स जिगजैग्ड टेल. जो ये आदमी हैं वो वहाँ पर अपनी फायरवुड को, लकड़ियों को चॉप भी करते हैं, काटते भी हैं उसकी टेल के ऊपर, क्योंकि टेल जो है वो एक उन्होंने बताया हुआ है जिग जैग की शेप में है. जिग जैग मीन्स लाइक स्टेयर्स की, सीढ़ियों जैसी हैं, थोड़ा ऊपर है, एक छोटा सा पार्ट है सीढ़ी की तरह में है, एक छोटे पार्ट में थोड़ी सी प्लेन एरिया, देन फिर थोड़ी सी और ऊपर जाके एक और हाइट पे है. एंड द लेडीज़ वीविंग ग्रुप ऑफन स्पन शीप फ्लीस ऑन इट्स स्पाइक्स. और जो लेडीज़ हैं वो भी अपनी जो शीप की जो ऊन निकालती हैं उसको उसकी स्पाइक्स पर सुखाती हैं. सो ऑफन ऑन अ कूल नाइट, कई बार रात में, व्हेन द स्टार्स ट्विंकल्ड ब्राइटली इन अ वेलवेट स्काई एंड द चिल्ड्रन वर पीसफुली asleep. कहते हैं ज़्यादातर रात में जब स्टार्स चमक रहे होते हैं आकाश में, आसमान में, द चिल्ड्रन वर पीसफुली स्लीप, और बच्चे बिल्कुल आराम से सो गए होते हैं सारा दिन के थके हुए. द ग्रोन अप्स वुड सेटल फॉर द इवनिंग. ग्रोन अप जो है वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं इवनिंग में. विद अ मग ऑफ स्टीमिंग कोका इन ए सॉफ्ट कुशन आर्म चेयर. और रात के टाइम में वो अपना दूध का मग लेके उसमें कोका पाउडर मिक्स करके अपनी आर्म चेयर पर बैठते हैं. देन द स्टोरीज अबाउट हाउ द ड्रैगन गॉड देयर बिगेन. फिर ये जो स्टोरी है कि कैसे ये जो ड्रैगन है वो यहाँ पर आया, उस कहानियाँ शुरू होती हैं. नो बडी न्यू फॉर श्योर, किसी को भी पक्का पता नहीं है कि ये जो ड्रैगन है वो कहाँ से आया है. देयर वर मैनी डिफरेंट वर्जन्स डिपेंडिंग ऑन विच फैमिली टोल्ड द टेल. बहुत सारी अलग अलग वर्जन्स हैं, अलग अलग स्टोरीज़ हैं सबके पास में. डिपेंड करता है कि किस फैमिली को क्या स्टोरी उनके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने सुनाई हुई है. बट द वन थिंग दैट एवरीबडी एग्रीड ऑन वॉज दिस. लेकिन सब, बेशक कहानियाँ सबकी अलग अलग है ड्रैगन के ओरिजिन में, बट एक जो उनकी विश्वास है, हर एक जो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जो सब कोई मानता है, दिस वॉज, इट इज़ इन द poetic form only. In times of trouble, the dragon will wake and free the village by making a lake. सबको इस बात पे विश्वास है कि जब भी हमारे गांव में कोई भी ट्रबल होगी, कोई भी मुश्किल आएगी, द ड्रैगन विल वेक, ये जो ड्रैगन है वो उठ जाएगा, एंड फ्री द विलेज, और गांव को फ्री कर देगा प्रॉब्लम से, दूर कर देगा प्रॉब्लम्स को, बाय मेकिंग अ लेक, एक लेक बनाकर. सो लेक, यू नो, इट्स अ वाटर बॉडी.
दिस लिटिल पोएम वॉज एज्ड इन टू एवरीबडीज़ माइंड। हर किसी के दिमाग में ये जो पोएम है वो फिक्स है, सब उसको इसी पोएम को उगाते रहते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो।